It was a power cut. So, so the whatever role moment of inertia plays in rotational, the same role is played by inertia in the translatory motion. Inertia सिर्फ मास पे डिपेंड करता है, ठीक है? Depends upon mass, whereas moment of inertia mass पे भी डिपेंड करता है and distribution of the mass around axis पे भी डिपेंड करता है. So moment of inertia depends not only on the mass but also distribution of mass. मास कहाँ पे पास है या दूर है, एंड यू कैन ऑल्सो से एक्सेस पे भी डिपेंड करता है. सेम मास दो डिफरेंट एक्सेस के अबाउट डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr स्क्वायर. इज ए स्केलर क्वांटिटी. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. इसका यूनिट क्या होगा? kg मीटर स्क्वायर. एंड डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L2 T0. m1 L2 T0 हो जाएगा mr स्क्वायर. So inertia depends upon mass, whereas moment of inertia depends upon mass of the body, distribution of the mass, as well as distribution mass का मतलब कि वो mass rigid body अगर है, extended body है, तो mass किस तरह distributed है. I'll tell you an example. जैसे कि रिंग है, रिंग में सारा मास रिम पे होता है ना, दूर होता है एक्सिस से. क्योंकि डिस्क में क्या होगा? मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर. तो दैट इज वाई दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होगा. इवन दो बोथ हैव same radius, but still, and the same mass, still, their moment of inertia would be different. Because ring में सारा का सारा mass rim के circumference पे distributed है. So disk में mass distributed everywhere. So it depends on distribution of mass also, mass and the choice of axis also. कि axis कहाँ पर है, उस पर depend करेगा. अभी करेंगे ये. लिख लिया था ना? Next is जो रोल फोर्स का है. फोर्स इज बेसिकली मास इनटू एक्सेलरेशन. फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लगेगा तो उसको ट्रांसलेट करेगा, एक्सेलरेट करेगा. तो जो रोल फोर्स का है वहां पे, वो टॉर्क, यहाँ पे मोमेंट ऑफ फोर्स का है टॉर्क. एम की जगह आई आएगा, ए की जगह अल्फा आएगा. दिस इज मोमेंट ऑफ फोर्स. इसको टॉर्क भी बोलते हैं. मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क. फिर एम की जगह आई क्यों आएगा? एम की जगह आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया. एनालॉजी थी ना. ओके। मास, जो मास ट्रांसलेटिव मोशन में रोल प्ले करता है, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल में करता है. वहां पे एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा है, यहाँ पे लीनियर एक्सेलेरेशन ए है. देन लीनियर मोमेंटम. इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला वाज दिस. तो ओवर हियर वी हैव एंगुलर मोमेंटम एल. एम की जगह आई, वी की जगह ओमेगा. लीनियर मोमेंटम is mass into velocity,
एंगुलर मोमेंटम इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास की जगह आ गया, v की जगह w ओमेगा आ गया। टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, ऑल दीज आर एक्सियल वेक्टर्स। फिर तुमने पढ़ा था न्यूटन सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू एफ। तो सिमिलरली वी हैव rate of change of angular momentum equal to torque. Same analogy. Rate of change of linear momentum is force. Rate of change of angular momentum is torque, moment of force. ठीक है। फिर तुमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा था ट्रांसलेटरी मोशन में। if f is 0 then dp by dt 0 हो जाता है, that is dp is 0। dp क्या, चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू 0। और pf is equal to pi, principle of conservation of linear momentum. If no external force act on a body or system of bodies, its linear momentum remains conserved. Conservation of linear momentum. So if there's no external force acting on a system of bodies, its angular momentum is conserved. चाहो तो statement लिख लो। If no external force, if no external force acts on a system of particles, on a system of particles, then its linear momentum, then its linear momentum remains conserved. Its linear momentum remains conserved. So similarly, we have principle of conservation of angular momentum also. देखो, अगर एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा है, मोमेंट ऑफ फोर्स नहीं है, तो फिर क्या होगा? dl by dt will be 0 और dl will be 0, that is lf minus l initial equal to 0. L है angular momentum. So this is conservation of angular momentum. Capital L is angular momentum. इसका स्टेटमेंट लिख लो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। if no external torque, if no external torque act on, if no external torque act on a system of bodies, then its angular momentum, then its angular momentum remains conserved. इसके एप्लीकेशंस पे भी क्वेश्चंस आएंगे, 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। ये लिख लिया सभी ने? यस।
सर हम्म। मैं आधा घंटा जल्दी जा सकती हूँ ना, मुझे जाना होगा फिर। क्या हुआ, क्या बोल रही हो? मुझे आधा घंटा जल्दी जाना होगा। ठीक है, ये लिख लिया? जिया, शिविका। यस सर। यस सर। देन ट्रांसलेशन में, यू नो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? Kinetic energy is energy possessed by a body by virtue of its translatory motion, half mv square. So kinetic energy is half mv square. तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ये काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन वाली। तो रोटेशन में काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? m की जगह I आएगा, v की जगह ओमेगा आ जाएगा, I ओमेगा स्क्वायर। ट्रांसलेशन में इट्स हाफ mv स्क्वायर, रोटेशन में हाफ I ओमेगा स्क्वायर। पावर का फॉर्मूला क्या था? वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? वर्क डन वाज एफ डॉट डी एस, है ना? तो रोटेशनल मोशन में वर्क डन होगा, एफ की जगह टॉर्क आएगा, एफ डी थीटा, टॉर्क डी थीटा। एफ को रिप्लेस कर दिया टॉर्क के साथ, और डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया। पावर का फॉर्मूला क्या था? रेट ऑफ डूइंग वर्क, डी डब्ल्यू बाई डी टी, और एफ डॉट वी। तो यहाँ पे रोटेशनल में पावर हो जाएगा डी डब्ल्यू बाई डी टी, एफ की जगह टॉर्क, वी की जगह ओमेगा, टाउ डॉट डब्ल्यू। तो जहाँ पे भी फोर्स आएगा वहां पे टॉर्क लगाना टॉर्क है आएगा, मुझे। जहाँ मास है वहाँ आई आ जाएगा, जहाँ वी है वहाँ डब्ल्यू आ जाएगा, लाइक दैट। जहाँ एस है वहाँ पे थीटा आ जाएगा। So this was the analogy between the two. Now we'll discuss moment of inertia. इनके मैंने डेरिवेशन तुम्हें ऑलरेडी दे रखे हैं नोट्स में, याद है? सभी के पास है ना ये नोट्स? रोटेशनल के मैंने इसका सॉफ्ट कॉपी भी डाला था, और हार्ड कॉपी तो दिया ही था। रोटेशनल का, इफ यू रिमेंबर, मैंने सारे डेरिवेशन दे रखे हैं। तो मैं अभी डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, मैं तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगा कॉन्सेप्ट करा के, ठीक है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा एक्सिस के रेस्पेक्ट में डिफाइंड होता है। सो इफ यू हैव अ मास, पॉइंट मास एट a distance r from some axis, तो इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द मास इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। ये है फॉर्मूला। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पॉइंट मास इज एम आर स्क्वायर। और अगर कई सारे, अगर कोई रिजिड बॉडी है जो कि लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी हुई है, m1, m2, m3, mn, सबका डिस्टेंस दे रखा है r1, r2, r3, rn। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली क्या होता है? एल्जेब्रिक सम होता है, m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, एंड सो ऑन। हर पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के ऐड कर दो। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज समेशन mi r i स्क्वायर।
where I changes from 1 to n. Summation mi square mi ri square. मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हमेशा उस मास का डिस्टेंस लिया जाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से, जिसके बाद तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। A body consists of two masses. M1 is 2 kg, M2 is 4 kg। ये डिस्टेंस इसका है M1, R1 डिस्टेंस है एक्सिस से 3 मीटर, और ये डिस्टेंस R2 है 2 मीटर। क्वेश्चन इज फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। टू पॉइंट masses, 2 point masses are connected. 2 point masses are connected by a massless rod. 2 point masses are connected by a massless rod of length 5 meter. Find moment of inertia of the system. Find moment of inertia of the system about an axis shown in the figure. जो एक्सिस मैंने डायग्राम में दिया ना वो करना है। कर लो। तो दिस बॉडी कंसिस्ट ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आई इज इक्वल टू M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर स्ट्रेट अवे। फिर यूनिट क्या होगा? यूनिट होगा केजी मीटर स्क्वायर। क्या आंसर आ रहा है शिविका? 34 kg/m²। यही है नंदिनी जी? हाँ। तो ये था एक्सिस नंबर 1 के अबाउट, ठीक है। नाउ आई टेक अनदर एक्सिस 2, थर्ड एक्सिस 3, एंड द फोर्थ एक्सिस, ये डिस्टेंस है 1 मीटर। करो। ऑल्सो फाइंड, तुमने अभी फर्स्ट एक्सिस के अबाउट निकाला है। I1 तुम्हारा आ गया था, मास था 2 kg। बाकी 3 एक्सिस के अबाउट भी निकालो।
I2 I3 I4 निकाल लो। पर इसमें जो मास है वो वो तो दोनों वही रहेगा सेम। वो मास तो दोनों वही रहेगा, सिर्फ डिस्टेंस उस एक्सिस से ली जाएगी, ठीक है। I2 कितना आ रहा है? आई थिंक हाँ। 16 आई थिंक। क्यों? सर बिकॉज हम वो मल्टीप्लाई करेंगे ना 4 into 2 square। M1 2 kg है, 2 kg का डिस्टेंस कितना है, टू सेकेंड एक्सिस से? 5 मीटर है। मास का डिस्टेंस एक्सिस से लिया जाएगा ना। तो टू ही तो होगा सेकंड से फर्स्ट। सेकेंड एक्सिस से M1 का डिस्टेंस कितना है? सेकंड एक्सिस से M1 3। 3 कैसे हो गया? एक्सिस नंबर 2 कौन सा है? 5 5 5 5। फिर तो 2 × 5 स्क्वायर होगा। और 4 kg का डिस्टेंस कितना है सेकेंड एक्सिस से? अच्छा तो अपने सेकंड को वो ले लिया उसकी वजह। हाँ तभी तो, और क्या। अच्छा। एक्सिस चेंज कर दिया ना मैंने, हाँ। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाएगा। सो व्हेन यू चेंज द एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आल्सो चेंजेस। कितना आ रहा है I2? तो 50 kg/m² आ रहा है। ठीक है। I3 I4 भी निकालो, I5 भी निकाल लो। I5 ये वाला एक्सिस है। I2 में पहले मास का डिस्टेंस है 5, दूसरे मास का तो डिस्टेंस ही नहीं है, वो तो 0 हो गया। उस वहीं से तो पास कर रहा है वो। 4 kg मास, उसी एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस 0 हो जाएगा उसका। 50 kg/m²। तो थर्ड का 100 होगा। थर्ड वाले में डिस्टेंस हो गया 5, हाँ ठीक है। सर तो जैसे जो सेकंड वाला जो फोर्थ को मैच कर रहा है, जो 1 मीटर है, उसके हम्म। साथ कोई मास नहीं है तो हम वो नहीं लेंगे ना। ना, ओके। मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ये है। R is distance of the mass from the axis. The distance has to be perpendicular distance. ठीक है, shortest distance।
I3 के लिए ये वाला था तो ये तो जीरो हो गया, 2 का तो जीरो हो गया, और 4 का हो जाएगा 2 + 3 5। फिर I4 कितना आ रहा है जिया, यहाँ अभी से? निकाला नहीं है मैंने। हाँ, निकाला नहीं है अभी। करो फिर जल्दी। हम्म। फिर फोर्थ वाले में हम एक लेंगे, ये वाला वन मास, मीटर 2 kg दोनों का, लेंगे ना? 2 kg का डिस्टेंस, 3 + 2 + 1, 5 6। और वो और वाला नहीं लेंगे हम? इसका डिस्टेंस 1। तो 76 हो गया ना? 76 kg m²। फिर I5, जिया तुम्हारा कोई स्कूल में टेस्ट हुआ तो उसका क्या हुआ फिर, मार्क्स? अभी तक नहीं दिया उन्होंने। अच्छा। हाँ। और तुम वर्क पारेंजी का टेस्ट कब दोगे? अ, इसी हफ्ते में दे दूंगी। ये हफ्ता आज वेडनेसडे, हाँ जी। तो मम्मी को कब भेजूंगा टेस्ट? और मैं आपको कल बता दूँ कब दे सकती हूँ। ठीक। I5 बताओ। जीरो नहीं होगा? हाँ, जीरो होगा? हाँ, I5 तो जो दोनों मासेस हैं वो I5 पे तो लाई कर रहे हैं, हम्म। दोनों का डिस्टेंस जीरो हो गया, सो विल बी जीरो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉन्सेप्ट समझ में आ गया अब? Suppose there are four masses like this. This distance is the square of side 2 meter. 1 kg, 9 kg, 4 kg, 7 kg। इसको नेम कर लो A, B, C, D। First question is find moment of inertia of the system about axis, which is I, AB। वो एक्सिस जो कि AB से पास कर रहे हैं, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। फिर दूसरा I, BC निकालना है। तीसरा इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, I, AC। पहले 3 पार्ट करो। Find moment of inertia of the system about these axes. फिर एसी के राउंड हम एसी के लिए हम बी और डी लेंगे। यस, देखो दो तो वहां से ही पास कर रहे हैं ना वो।
तो फर्स्ट वाले का क्या होगा? फर्स्ट वाले का हो जाएगा, आई ए बी था ना, 9 × 2² प्लस 4 × 2² है ना। सर, हाँ मैं जाने से पहले आपसे एक मैथ्स का डाउट पूछूं। बोलो। सर, सीक्वेंसेस एंड सीरीज में जो सम वाला फॉर्मूला होता है, हम्म। उसके दो फॉर्मूलाज होते हैं ना। हाँ, एक तो फर्स्ट टर्म के में, एक लास्ट टर्म के टर्म में होता है। वो मतलब मैंने कहीं पे देखा था कि अगर वैल्यू उससे बड़ी हुई तो ये वाला यूज करना है, फिर कुछ नहीं नहीं, कंडीशन। अच्छा वो जीपी की बात कर रहे हो क्या तुम? हाँ। जीपी, वो ऐसा नहीं, ऊपर नीचे तो माइनस साइन कॉमन ले लो, सेम बात हो जाती है वो। जैसे ये है ना फॉर्मूला, तो इफ आई टेक माइनस साइन कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर एंड माइनस साइन कॉमन फ्रॉम डिनोमिनेटर, तो इज सेम थिंग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई सा भी यूज कर सकते हो। बट जनरली जैसे है कि अगर आर वन से छोटा है तो ऊपर वाला कर लो, आर वन से बड़ा तो नीचे वाला कर लो, बस दोनों से सेम आंसर आता है। सो आई ए बी हो गया तुम्हारा 9 × 2² प्लस 4 × 2², 52। यस सर। आई बी सी में क्या होगा, बी सी में तुम 1 और 9 लोग है ना, आई बी सी में ये एक्सेस हो गया। ये कितना आ रहा है ये? ठीक है, आई बी सी में बी और सी का तो 0 हो गया, ए और डी का लेना है 1 और 9 का। आई ए सी में क्या करोगे? डी और बी का आई लेंगे। ए सी में ये वाला डिस्टेंस, डिस्टेंस बी और डी का लोगे ना, फिर ये डिस्टेंस देना पड़ेगा तुम्हें, तो तुम बी डी निकाल सकते हो पाइथागोरस लगा के। ये ओ ले लो, तो बी डी डिस्टेंस कितना हुआ, 2² प्लस 2² द रूट, 2√2 हो गया। तो ओ बी एंड ओ डी एंड ओ ए एंड ओ सी और ऑल इक्वल, स्क्वायर है ना ये, तो 2√2/2 हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो आई एस सी में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डी का डिस्टेंस है √2 और बी का डिस्टेंस भी √2 है। तो 52 आएगा ना। हम्म। मैंने एक पेपर डाला है तुम्हारे शौर्य का, वो आईएससी उसमें है वैसे तो, कुछ टॉपिक्स के डिफरेंट भी आए, बट यू कैन सी द कॉमन क्वेश्चंस। आई ए आई ए सी का कितना हो रहा है? 52। 9 का हो गया √2 डिस्टेंस, 7 का भी होगा √2 डिस्टेंस, कितना आ रहा है? 32। हाँ,
अब नेक्स्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, एक्सिस पासिंग थ्रू ओ एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एबीसीडी। लिख लो, एक्सिस थ्रू ओ एंड perpendicular to ABCD. तो हम्म अगर उसके परपेंड ए बी सी डी से परपेंडिकुलर है तो उसके लिए तो सारे वो है ना। देखो सारे नहीं होंगे, परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू ओ, यहाँ ए ओ से पास, हाँ इसमें सारे होंगे, ओ से पास कर रहा है वो, ठीक है, सारे हो जाएंगे। इट्स लाइक दिस, अगर मैं इसका 3D बनाऊं, 3D डायग्राम, सो इट्स समथिंग लाइक दिस, ओ से एक्सिस पास कर रहा है, तो इसका परपेंडिकुलर से इसका डिस्टेंस, चारों का डिस्टेंस ले लोगे तुम, ऑल फोर मासेस, तो ये हो जाएगा 1 × √2 का स्क्वायर, 9 × √2 का स्क्वायर, 7 × √2 का स्क्वायर एंड 4 × √2 का स्क्वायर। कितना आ रहा है? तो वाई विल बी टेक √2। हम्म तो √2 क्यों लेंगे, हम 2 नहीं लेंगे। √2 द डिस्टेंस ये वाला, अच्छा AO BO CO DO कितना है? You always take the shortest distance. फिर से 32। हम्म 32 होगा। √2 स्क्वायर तो कॉमन आ गया, 9 + 1 10, 10 + 7 17 + 4 21, 21 × 2 42 आ रहा है। अच्छा ओ हाँ, ओके। 42 kg मीटर स्क्वायर। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन, अगर axis is perpendicular and passing through A, axis perpendicular to ABCD and through A, कर लो, एक्सेस ABCD के परपेंडिकुलर है और A से पास कर रहा है।
हो गया। अब ये ए से पास कर रहा है ना, तो हम लोग पूरा ए और बी से जाते हुए लेंगे या डायगनली लेंगे? परपेंडिकुलर टू एबीसीडी है ना ये, और ए से पास कर रहा है, तो ये एक्सेस ये वाला हो गया अब। तो फिर हम बी सी एंड डी लेंगे ना? हाँ लेकिन एक्सेस ये है तुम्हारा, ये वाला एक्सेस है। तो डी का डिस्टेंस ये वाला होगा, बी का डिस्टेंस ये वाला होगा, सी का डिस्टेंस ये डायगोनल वाला होगा। ये वाला 2√2 था ना सर? हाँ, तो उसका आ रहा है 96। कितना आ रहा है? 96 सेकेंड। एक डी का डिस्टेंस ऐसे हो जाएगा 9 × 2 का स्क्वायर, 4 kg का डिस्टेंस 2√2 हो जाएगा, और 7 kg का डिस्टेंस 2 हो जाएगा। 36 प्लस 32 प्लस 28, 96 kg/m² है ना। तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देख लो एक बार। अब आई हैव टू गो। हम्म। जा रही हो तुम? यस। ठीक है, टेस्ट वहीं से देना फिर। ओके। अगर नहीं हो सके तो आके दे देना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ठीक है बट सर, अगर मुझे मैथ्स में कोई डाउट हो तो मैं आपको टेक्स्ट कर सकती हूँ? हाँ, मेरे को व्हाट्सएप कर देना। तो वहां ओके। जाके ही पढ़ोगी क्या तुम? तो करना पड़ेगा ये पेपर। 8 तारीख मत से। जाओ ना फिर, मत जाओ। या तुम जरूर पढ़ने नहीं। तुम पढ़ने ही जा रही हो वहां पे। थैंक ओके। यू सर, बाय। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स, ये तुम्हें रिजल्ट याद करने हैं। पहले इनका डेरिवेशन भी कोर्स में हुआ करता, अब ये कोर्स से हट चुका है। सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर रिंग, सिर्फ फॉर्मूला याद करना है। सो इफ यू हैव अ रिंग of mass m, radius r, and this is the axis, so ये एक्सिस के सेंटर से पास कर रहा है, और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर भी है। दिस एक्सिस passes through the center of the ring and is perpendicular to the plane of the ring. कहने का मतलब अगर रिंग एक्स वाई प्लेन में है तो एक्सिस इज अलोंग जेड एक्सिस। डायग्राम बनाओ। शिवेगा ये चल रहा है ना अभी, तो चैप्टर तुम्हारा खत्म हो गया है। नहीं सर, खत्म हो गया। अच्छा, पता भी नहीं लगा तुम्हें कब हुआ खत्म। सर वो स्कूल में नहीं पढ़ाते, बिल्कुल अच्छे से नहीं पढ़ाते। अच्छा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I = mr²। लेकिन अगर एक्सिस चेंज होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाएगा। और इफ आई टेक अ डिस्क ऑफ सेम रेडियस एंड सेम
mass. तो moment of inertia of disk will be less, half mr square. कैन यू टेल मी ऐसा क्यों हो रहा है? डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से कम क्यों है? मास तो बराबर है, रेडियस भी बराबर है। क्या रीजन है, सोचो। जी आप बताओ, तुमने रोटेशन खत्म कर लिया है स्कूल में? हमें तो ये पढ़ाया ही नहीं क्या, मतलब ये हाँ क्या बात कर, फॉर्मूलाज बताए नहीं हमें। रोटेशन खत्म कर दिया? हाँ ये बताया भी नहीं, और इसके पहले वाला ये भी कैलकुलेट करना कुछ नहीं बताया। अच्छा, बहुत नाइंसाफी है। ये तो सारा सिलेबस में है। एनसीईआरटी जरा खोलो, लेटेस्ट एनसीईआरटी है तुम्हारे पास? या गूगल में खोल लो एनसीईआरटी, चैप्टर खोलो ये वाला। कौन सा चैप्टर है ये, रोटेशन? 5, नहीं यस, 7। 7। हाँ, पेज 141 देखो इसका। Center of mass, motion of center of mass, linear momentum of system particle, vector product of two vectors, angular velocity, torque and angular momentum. 7.9 है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया मीन्स सारे ऑब्जेक्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें याद करना है। रिंग हो गया, डिस्क हो गया, रॉड हो गई, सिलेंडर हो गया। ये टेबल बनी हुई है 7.1, पेज नंबर 165 देखो। यस सर। यही है सारा, यही हम कर रहे हैं अभी। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। रीजन इसका ये है कि जो मास है ना रिंग में, वो एक्सिस से दूर सिचुएटेड है। इट इज एंटायर मास ऑफ द रिंग इज सिचुएटेड अवे फ्रॉम द एक्सिस, एंड अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जितना मास, जितना आर ज्यादा होगा उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है। जबकि डिस्क में मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है अबाउट द एक्सिस, जबकि रिंग में सारा का सारा मास बहुत दूर है, अवे फ्रॉम द एक्सिस है, इसलिए रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो गया। नेक्स्ट इज cylinder, hollow cylinder and solid cylinder. So if you have hollow cylinder like this, अंदर से खाली है वो, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा सेम एज रिंग हो जाता है। तो यू कैन नोटिस दैट जो डायमेंशन एक्सिस के पैरेलल है ना, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले में मैटर ही नहीं करता वो। एच कितना ही बड़ा हो कितना ही छोटा हो, विल बी सेम एज द रिंग।
लेकिन अगर सॉलिड सिलेंडर होगा so will be same as disk. Half mr square. So moment of inertia of a solid cylinder is half mr square. लिख लिया? यस सर। सर बस सॉल लास्ट वाला दिखा दो एक बार। हो गया। सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर में किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होना चाहिए? सेम मास सेम रेडियस। सोचो। एक सॉलिड सिलेंडर है, मास हर स्फीयर सॉरी मास हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। हॉलो स्फीयर में सारा का सारा मास सरकमफ्रेंस पे होगा। तो हॉलो का ज्यादा होगा वो मास अवे फ्रॉम द सेंटर है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी 2/3 mr² and 2/5 r²। नेक्स्ट लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद थिन रॉड। So if you have a thin rod of length L, mass m, then moment of inertia about center, an axis perpendicular to its length is 1/12 ml². And moment of inertia of a thin rod about end, one of the end of the rod is 1/3 ml². तो इतने काफी हैं। अब हम करते हैं मोमेंट ऑफ ए फोर्स और टॉर्क। तुमने कभी नोटिस किया कि ये जो डोर में हैंडल लगा होता है, सपोज ये डोर ये है, यहाँ पे हिंज कर रखा है इसको, तो कभी देखा हैंडल यहाँ लगा हो डोर का? हैंडल हमेशा फार्देस्ट होता है। हैंडल ऑफ अ डोर इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द hinges about the axis about which door rotates.
डोर का रोटेशन होता है वो हिंजेस के अबाउट होता है, हैंडल हमेशा दूर लगाते हैं। किसी मैकेनिक को तुमने टायर खोलते हुए देखा होगा, जो नट बोल्ट खोलता है वो तो स्पैनर लगाता है यहाँ पे और फिर एक लंबा पाइप ले लेता है, फिर इसको पुश करता है। तो जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना ही कम फोर्स लगाना पड़ेगा उसको, और वो नट खुल जाएगा। मोर एल, यू हैव टू अप्लाई लेसर फोर्स। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है कि डोर का हैंडल डोर के एक्सिस और रोटेशन से दूर रखा जाता है। जितना डिस्टेंस ये ज़्यादा होगा उतना ही कम फोर्स तुम्हें लगाना पड़ेगा डोर को ओपन करने के लिए। इन सब में जो बेसिक कॉज है वो है मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क इज द बेसिक कॉज। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है जो ओ के अबाउट रोटेट कर सकता है, और देयर इज अ पॉइंट पी वेयर वी अप्लाई फोर्स। ये हमने फोर्स लगा दिया। ओपी डिस्टेंस आर है और ये एंगल थीटा है। ओ से हमने परपेंडिकुलर डाला, ये ए है। बना लो डायग्राम। हो गया, डायग्राम बन गया। So moment of force or torque is defined as force into momentum. What is momentum? Momentum is perpendicular distance of from axis of rotation to the line of action of force. Momentum is perpendicular distance of the point of rotation. Momentum is perpendicular distance of point of rotation to the line of action of force. Line of action of force से perpendicular distance फोर्स की कहलाती है मोमेंटम। तो यहाँ पे ओ ए डिस्टेंस जो है ना, इट्स मोमेंटम। तो मोमेंट ऑफ ए फोर्स इज डिफाइंड एज
फोर्स इंटू मोमेंटम, तो फोर्स एफ है, यहाँ पे मोमेंटम एल है, ठीक है। अब सी द राइट ट्रायंगल ओ ओ ए पी, in the right triangle OAP, what is sin theta? OA by OP. So sin theta is OA, OA L हो गया, OP हो गया R. So L is equal to R sin theta आ गया. तो L को तुम R sin theta से रिप्लेस कर दो. और वेक्टोरियली it is R cross F. तो moment of force is cross product of R and F. It is a vector quantity. It is basically axial vector, मतलब parallel to axis of rotation. Angular velocity, angular acceleration, torque, moment of force, ये सारे के सारे axial vectors होते हैं. They are along the axis of rotation. यूनिट क्या होगी इसकी? न्यूटन मीटर और जूल एसआई यूनिट, और डाइन सेंटीमीटर, और अर्ग हो जाएगी इसकी सीजीएस यूनिट. डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L2 T-2. Dimensional formula is m1 L2 T-2. तो मोमेंट ऑफ फोर्स का ये छोटा सा डेरिवेशन 3 मार्क का आ सकता है, या इस पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है. लिख लिया? यस सर। करो. फाइंड मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क इफ R इज दिस, F इज दिस.
क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता है ना शिविका? और यस सर। फिर माइनस करते हैं ना बीच में। हाँ, प्लस माइनस प्लस। ठीक है। तो जब आई लोगे तो ये कॉलम हट जाएगा, ये रो हट जाएगा, 10 into 10 -10 into 10, फिर -j, ये रो हट गया, ये वाला कॉलम हट गया, तो 2 into -2 -4 माइनस साइन, 4 into 6 24, फिर प्लस के आएगा, ये कॉलम हटा दो, ये रो हटा दो, 2 into 7 14 माइनस -3 into 6 -18, ये आ रहा है। यस सर। यस सर। तो टॉक इज -22i +28j +32k न्यूटन मीटर। और अगर स्टॉक का मैग्नीट्यूड निकालना है तो चाहो तो तुम 2 बाहर निकाल लो रूट से। So this will be the magnitude of the torque. कितना आ रहा है? 121, 196, 256, 573, 2√573, 2 2√573। न्यूटन मीटर। So this is how you can find. तो मोमेंट ऑफ फोर्स में हमेशा या तो आर क्रॉस एफ यूज करोगे, अगर मोमेंट आर्म दे रखा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यूज कर लोगे, ठीक है। इसका मैंने तुम्हें असाइनमेंट दे दिया था ना, यस। रोटेशन का। यस सर। सो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स के न्यूमेरिकल्स, और विल ऑल्सो बी डूइंग इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज, है ना। सो दैट्स इट, एंडिंग द क्लास। लेकिन आज का रिवाइज कर लेना। और शिविका, तुम अब तुम्हें टेस्ट देने हैं,
मोशन 1D का टेस्ट दे सकती हो तुम, अब तुम्हारी तैयारी हो गई है? ठीक है सर, मैं दे दूंगी इस हफ्ते, अगले हफ्ते दे दूंगी। ठीक है। उसका एक तो डायमेंशंस का दे दो, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का, और एक मोशन 1D कर लो। ठीक ठीक है है। सर। ओके, एंडिंग द क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू सर।